दो units are यूनिट। फर्स्ट सेकंड। okay. In the next 2 minutes. Okay, okay, okay. Okay, no problem. I think it is get completed very soon. क्योंकि हमने इसको 30 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा हुआ है. Till that, I think your classes, your syllabus were completed. Okay. Then after, I think university decide about your examinations. If it is happened, then it's okay. Otherwise, we have to go for some other mode for your examination or your promotion and so on. Okay. Now, in my part in biochemistry, the portion which is left, I think the first topic which is rest is waters. Okay. तो waters हमें पढ़ना है और waters के बाद एक छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स और हैं. तो I think we complete with this topic in coming days. So today we start with waters. Okay, is it clear? Yes, sir. यस सर। Now, yeah, tell me any doubt, any issue? नो सर। Okay, okay. So now I'm going to start my presentation about water. Now, is it visible to all? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। Now, we start with the chapter waters. You know well about the waters. I think everybody know what are the water is, what is its chemical composition, what is the most important thing which we learn about the water. That water is a very very precious molecule on earth, because of which the life on earth is possible. Okay, so we see some of the common chemistry of the water. So in this topic, we discuss about these few things. Waters, what are actually waters are, unsealed properties of waters, what are the some specific properties of the water we have to discuss in this lecture, how water acts as a solvent of life. Then we see that some solvent properties of water, high heat capacity of water, high heat of vaporization, high heat of fusion, density and freezing properties of water, high cohesion, adhesion and surface tension of water, and how water act as a reactant. So these all are the topics which we learn, and it is the learning objectives of this lecture. So what does life require? This is the first question which comes into mind whenever we go for search of any life on any part of your universe. अगर कहीं पे कोई जीवन है, कोई लाइफ है, सस्टेन कर रही है पूरे यूनिवर्स में, तो फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो लाइफ को सस्टेन करती है? Then we see that लाइफ को सस्टेन करने के लिए अगर कोई मॉलिक्यूल है, so that molecule is water. Okay, so what are that molecules are? Molecules are actually the two or more atoms held together by chemical bonds. So that is what the molecule is. So that the best example of this molecule is the water, and you know that in water the two hydrogen atom are get binded to one oxygen atom. Okay, and if you see the chemistry of this hydrogen and oxygen, then you find out oxygen is the most electronegative element and the hydrogens are the most electropositive elements. And because of this interaction of highly electropositive element to highly electronegative element, then this may able to form the hydrogen bonds. So that is what the very very important thing about this water structure is, that they contain both the element, that is most electropositive element and most electronegative element, which may able to form the
water molecule. Okay, so now come to see what the water is. Water, the solvent of life. We know well about the water. It's a solvent of life. The one of the very important thing about the water is it is the most abundant substance in living system. तो वाटर केवल अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, it is available in our system also and it is available in a very bulk amount. बल्क अमाउंट में वाटर जो है वो हमारे लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है. Make about 70% of the body weight. So it is approx the 70% weight हमारे बॉडी का वो वाटर का ही है और that makes the water the solvent of life. So this is what the water do. It is water which may give this property that because of this high which are existing in our body, it make the solvent of life. What is happening? क्या हो रहा है? So life is originated in water. Everybody know how the life is originated. If we see, you know well, origin of life की जितनी भी hypothesis दी गई है. So what are that hypothesis of origin of life? Anybody? कौन सी hypothesis है origin of life के लिए? Theory of biogenesis and abiogenesis. Theory of biogenesis और So Urey and Miller experiment. yes, Urey and Miller experiment. So you know well, Urey and Miller experiment is the one of the very important experiment जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि वाटर के ही प्रेजेंस में लाइफ का ओरिजिन हुआ. ओके, सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद जब यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया यूरे एंड मिलर ने, उन्होंने सबसे पहला कंपोनेंट जो वाटर के अंदर फॉर्म किया, दैट कंपोनेंट नेम इज कोएजरवेट्स. ओके, सो कोएजरवेट इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड व्हाट इज दैट कंपोनेंट्स आर. वो कोएजरवेट जो कंपोनेंट था that is basically a combination of a proteinaceous molecule. So that is what the first theory which proves that life is originated in water. Okay, and later on अगर हम evolution of life देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पूरा जो लाइफ की ओरिजिन की थ्योरी है वो 2 और 3 कंसेप्ट पर बेस्ड है. पहला कंसेप्ट आया था बिग बैंग थ्योरी का, in which we think about what has happened, that 2 huge mass get collided to each other and now it is get separated to each other in a very far manner. और जो उसमें से सबसे बड़ा जो मास था, now that mass is termed as sun, and then after those small splitting bodies which are start rotating on the surrounding of that huge mass, that may create that our own solar system. And on the basis of the separation and the distance, that we start having the different component which we termed about the planets, जिसको हम planets कह रहे हैं. इनिशियल थ्योरी जो कहती है कि स्टार्टिंग में हमारा अर्थ भी क्या था, इट इज अ ह्यूज warm mass, and whenever this mass is get cooled, then we got the huge cooling हुआ. कूलिंग के बाद क्या हुआ, then there is the formation of a huge amount of cloud on over the earth, and that cloud start raining, and that raining is termed as torrential rain, and that may goes on for years on years. That raining goes to years and years,
And because of that raining system, what has happened? Our whole of the earth is get equipped with the huge water bodies. तो पूरा पूरा अर्थ जो है हमारा वाटर बॉडीज में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ द दैट रेन. So then later on Urey and Miller experiment proved that now beneath that water the life is get originated, and frost the life is get started which is originated. They are totally an oxygenic environment in which the life is originated. तो पहला जो लाइफ ओरिजिन हुआ वो पूरी तरह से एन ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट में ओरिजिन हुआ उनका. Then after that oxygenic environment is came because of the oxygen which is get released by the plant system. Now that all over the earth is get converted into an oxygenic environment, and after that you see that the new life is get originated in which the oxygen is the one of the very very important component for that life. Okay, so in this way you can see that life is originated in water, and water is one of the very precious molecule because of which there is the existence of life. Otherwise there is no life on earth is initiated. Okay, now we see that water has some unusual physical and chemical properties are also. हम अभी देखेंगे आगे लेक्चर्स में कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर्स के जो अनयूजुअल हैं, और दैट इज द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच शो द these unusual physical and chemical properties, not any other component. And this unusual physical and chemical properties of water enabled it as a solvent of life. तो अगर ये हमारे पास as a solvent of life है, so that is the just because of the these physical and chemical properties which is available in the water. Okay, so what are those unusual properties of water, sir? So if we think about, then we see that this unusual property of water is due to three factors. And what are these three factors are the first is small size of water molecules, second is polarity of water molecules, and third is formation of hydrogen bond in water molecules. So you can see that one of the very important property which is termed as the unusual property of water, that is a small size of water. Another is polarity, and the last is the hydrogen bond formation. Okay, so you can see that if you see the hydrogen molecule, you see the oxygen molecule, then you find out that both of these two molecules are very very small in size, and whenever these molecules are get binded to each other, then they give rise to another very small component, that is the water molecule. And with that small size, they give the some unusual property. Second is the polarity. You know, water is having a 12 feature that it has the polar molecule, and because of this polarity, thus some unique property is already available in the water molecule. We see what are those unique properties later on. Another is the formation of hydrogen bond. As I told you in initial slide, that's how the hydrogen bond is get formed. Hydrogen bond is get formed when the most electropositive element and the most electronegative element come closer to each other, then they may able to form the hydrogen bond. And this unique feature of hydrogen bond in water molecules give this unusual property. I think many of you are appear in your PMT exams, and whenever any of the question about the water molecule is get asked, so the one-liner answer of that questions were the hydrogen bond. So water have that, whatever the unusual properties of the water have, it is just because of these hydrogen bonds. So the hydrogen bond is another very important property in the case of water molecule. Now we see that polarity. So what is a polar molecule? And what is a polar molecule means? Polar means any component. Yeah. Yes. हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है.
Yeah, anybody says anything? सर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। हाँ, हाइड्रोजन के साथ जो भी बॉन्ड बना लेगा, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी के लिए हम लोग क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब हम प्रोटीन डिस्कस कर रहे थे, जब हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे थे, लिपिड डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि आपको पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी फिनोमिना जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। और ये प्रॉपर्टी पोलैरिटी की तभी मिलती है जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी इजिली कोई मॉलिक्यूल गेन करता है। सो सिंपल डेफिनेशन में हम पोलैरिटी के लिए कह सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल which form hydrogen bond very easily with another molecules. So कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, so that are termed as the polar molecules. And those molecules which are unable to form the hydrogen bond easily, then that's the non-polar molecules. तो वाटर के साथ सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है, it is a polar molecule because it forms the hydrogen bond very easily. And why it has formed the hydrogen bond very easily? Because oxygen side is slightly negative and hydrogen side is slightly positive, and that gives the electronegative features. How strongly atoms pull electron, that is what the electronegativity is. Electronegativity is how strongly the atoms pull electrons. So this is make the electronegativity, and because of this feature we see that hydrogen is most electropositive and oxygen is most electronegative element. When molecules have no charges, they are non-polar. अगर कोई उनके पास चार्जेस नहीं है और स्पेशली जो उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के फीचर्स नहीं है, that are the non-polar molecules. Hydrogen bond. The weak attraction between the hydrogen atom of one water molecule and the oxygen atom of another, that is what the hydrogen bond. So अगर water आपस में hydrogen bond बना रहे हैं, so that is just because of the weak attraction between the hydrogen atom of one water molecules with the oxygen atom of another, that may able to form the hydrogen bond. Water molecules tend to stick together, and this is because of the hydrogen bonding that water molecules able to stick together, and this phenomena is known as cohesion. आपस में bind करने की जो phenomena है, because of this hydrogen bonding, this phenomena is termed as cohesion. Now, due to polarity, what we going? Because of this polarity, we see that water is a good solvent. It is a very unique feature about the water, that water is a very good solvent. It can dissolve anything except the non-polar component. So anything which is polar, that all the components are very easily get dissolved in a water. So we have a two type of the component are, one is solute and another is solution. Solute, what is being dissolved, and solution, the solute in the solvent. तो सॉल्यूट वो है जो कि डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्यूशन वो है जिसमें जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सो हमारे पास तीन टर्म है, सॉल्वेंट जो कि वाटर है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट जो इसमें डिसॉल्व हो जाए, एंड सम पोलर कंपोनेंट व्हिच कैन डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूशन जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है, जो कंपोनेंट बना, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन. So this component is only we get formed because of the one feature of the water molecule, and that is known as polarity. So तो तीन स्पेसिफिक फीचर हमने देखे थे, अनयूजुअल प्रॉपर्टी वाटर के हमने देखे थे. पहला था हमारा पोलैरिटी, दूसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड थर्ड इज योर स्मॉल स्मॉल साइज. साइज. सो इन द केस ऑफ दिस स्मॉल साइज, हमने देखा कि स्मॉल साइज में क्या है, स्मॉल साइज वाटर ऑलरेडी बहुत स्मॉल छोटे साइज का है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दो मेजर प्रॉपर्टी को मिल रही है पोलैरिटी की, एंड सेकंड इज दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट properties of water.
में हम देखते हैं वाटर कैन डिसॉल्व सॉल्ट and those components which are get dissolved in the water, they are termed as hydrophilic. That means water loving component. And because molecules, because the hydrophilic molecules are polar molecules, and that are why it is termed as water loving molecules. Now you can see that in this picture, this figure shows that as NaCl is get into the water, now you find out this sodium ion and chloride ion is get separated out. So this is the water molecules, and these water molecules get surround to both of these two. That means chloride ion and sodium ion. So sodium ion is get surrounded by water in this manner, and chloride ion are get surrounded by water in this manner. So what happened because of this? अगर इस तरह से अगर डिसॉल्व हो रहा है, जैसे ही सोडियम सॉल्ट एंड क्लोराइड सॉल्ट NaCl सॉल्ट हमारा इस पानी में आ रहा है, so both of these two ion are get splitted out, और स्प्लिट होने के बाद this water is get surrounded to their parts in this manner. Okay, so what happened because of this? Anybody? क्वेश्चन समझ में आया? सर फिर से रिपीट कर दीजिए। जब हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को हमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद अभी मैंने फिगर में दिखाया आपको कि सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, और दोनों वाटर ने दोनों को सराउंड कर लिया। सराउंड करके दोनों के साइड में एक लेयर बना लिया। सो व्हाट हैपेंस, अगर इस तरह का अगर फीचर आ गया, देन इससे क्या होगा? सर NaCl molecules will break down into ions. नहीं, वो तो पानी में आते ही टूट गया। टूटने के बाद दोनों के सराउंडिंग में वाटर ने लेयर्स बना दिए। सर लेयर्स डाइपोल बनाने के बाद क्या होगा? लेयर में आ गए हैं तो दैट मीन्स वो वापस से अपने आयंस के साथ बाइंड नहीं कर सकते। ओके, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वापस से जुड़ नहीं सकते पानी के अंदर, बिकॉज दोनों को वाटर ने अपने सराउंडिंग लेयर्स में, जिसे हम सॉल्वेशन लेयर बोलते हैं, उस सॉल्वेशन लेयर से कवर अप कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच both of these two ions are not be get joined further, and because they are not be get joined further, that means they are get dissolved. Okay, so अगर नमक को हमने पानी में डाला और वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसके पीछे केवल यही रीजन है कि both of those two ions are get into the solution layer of water and they are not able to get rejoined further. And that is why it not be remain in the salt form in water. Okay, but as soon you can remove the water, अगर आप उसी नमक के पानी को वापस से बॉयल कर दो और बॉयल करके सारा पानी आप उसको इवोपोरेट करा दो, then what happens, you can find out that your salt is get reappear. So ये reappear क्यों हुआ? Because now the sodium ion and chloride ions are further get rejoined in absence of water, and now the salt is get appear. So this is the property which is in the case of NaCl. We see that how the NaCl is get dissolved in the water. Okay, not all the polar molecules are get dissolved in the similar manner, but most of the ionic molecules, जितने भी इस तरह के ionic molecules हैं, when they are dissolved in the water, they are get dissolved in the water in this similar manner. Okay, but if you see in the case of glucose, the glucose is not be get dissolved in this manner. They are totally differed. They are get dissolved in a somewhat different manner
as the NaCl components are, because glucose are not be get break down into their ionic component as such. Only their hydroxyl groups which are available in the glucose structures, they are get involved in the interaction with the water molecules, and that is how they can be get into a dissolved form. Okay, but in the case of NaCl, it is the ionic component which is get break further, and then after they are get engaged into the solution layer of water, and now they are unable to get bind further, and that is why that it is get into a dissolved form. Okay, is it clear? Any doubt? No. Yeah, we come to the next. Now, that is another very important property of water, that water can dissolve acid and bases also. Acidic component are substance that donates proton ions to solution, and basic component are substance that accept proton ion. So that is the two different components. That is, one is the acid, another is a base. So acid are those components which donates the proton ions to solution, and the base are those components which accept the proton ion. And both of these two components are get dissolved in water. And just because of which property? Just because of donating the proton ions and accepting the proton ion, they are able to get dissolved in a water. And on the basis of this property, that we have to come to the one very important property of this solutions, like acid and base solution, that is termed as that on the basis that these acid and base solutions are get into the measurement on through the pH scale. So the pH scale is a measure of relative amount of acid and base in a solution. तो किसी solution में कोई भी component कितना acidic है या कितना basic है, ये हम केवल और केवल उसकी pH scale को मॉनिटर करके बता सकते हैं. अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, प्योर 7 है, pH अगर केवल 7 है तो न्यूट्रल है, और pH अगर 7 से कम है तो वो हमारा कंपोनेंट एसिडिक है. सो दिस इज व्हाट दिस फिगर शो द pH स्केल, जिसमें हम देख रहे हैं हमारा 6 to 1 ये हमारा एसिडिक pH का कंडीशन है, ये न्यूट्रल pH है 7 पर, और 8 to 14 हमारा बेसिक pH है. ओके, सो अगर नॉर्म एक जनरल टर्म्स में बात करें तो pH स्केल, व्हाट इज द pH स्केल इज, pH स्केल है क्या? व्हाट डू यू नो अबाउट द pH स्केल? हाउ यू कैन define the pH? So concentration of hydrogen ion. Okay, concentration of hydrogen ion, it's true, but यहाँ पर हम एक और चीज ऐड करते हैं कि केवल concentration नहीं कहेंगे, pH में हम या एसिड और बेसिक बताता है. हाँ, एसिडिक और बेसिक चीज तो बताता है. बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल कितना सर अमाउंट जो हाइड्रोजन आयन का है, या हाइड्रोक्सिल आयन का है, या हाइड्रोजन का है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपने बताया अभी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ही पीएच बताता है. बट अगर हम इसको थोड़ा सा और केमिस्ट्री बेसिस पे बात करें तो हेंडरसन हैशलबैक ने एक इक्वेशन दिया था, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बफर को डिटरमाइन करते हैं. और सोरेनसन ने जो आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था, उन्होंने कहा द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिव्स द पीएच. यानी कि हम केवल और केवल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, पीएच हमारा किसी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की लॉग वैल्यू की इंफॉर्मेशन देता है.
यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करना है तो लॉग वैल्यू पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, देन ओनली वी गेट द पीएच। सपोज हमारा कोई कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7 आ रहा है, तो 10 टू पावर -7 अगर आ रहा है तो दैट मीन्स इसका पीएच होगा 7, क्योंकि हमने जो लॉग वैल्यू लिया है 10 टू पावर -7 का, वो बता रहा है कि पीएच क्या है, 7 है। And that is the what the neutral condition about the any solution is given. Okay, so on the basis of this, what we do, we have to go for the calculation of the pH. हम इसी के बेसिस पे कुछ pH का calculations करते हैं। You know well about the pH calculations? आप लोगों ने pH calculation पढ़ा है? कैसे करते हैं pH calculations? Yeah. Paper. No. Sir, by litmus paper. So no, litmus paper is just to give the information about how much acidic or the basic any solution is. That's all. सर Arrhenius Yeah. equation सर मोलर डाल के मोलर वाला था। Okay, मैं आपको next class में कुछ problems दूंगा. You just solve that problems and then we have discussed how you can be get the that problems of pH. आप उस problems को कैसे solve करोगे, ठीक है? So in the next lecture. कैलोरीमीटर से शायद चेक करते No, हैं no, pH। no. pH meter को भी कैलोरीमीटर से नहीं करते। pH meter is always we get measured with the instrument that is known as pH meter। उस pH meter बोलते हैं। लेकिन normally कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए कैलकुलेट करने के लिए, कि सपोज आपको मैंने कहा कि यू हैव अ 0.2 नॉर्मल KOH इज देयर और उसको आपने पानी में डिसॉल्व किया, सो उसका पीएच कितना होगा? 0.2 नॉर्मल KOH है आपके पास और आपने उस 0.2 नॉर्मल KOH को अगर पानी में डिसॉल्व किया तो हाउ मच पीएच इज ऑफ दैट KOH सॉल्यूशन? ओके, Arrhenius equation यूज करके अरेनियस नहीं यूज करते इसमें। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन मैंने अभी पूछा आपको कि अगर आपके पास 0.2 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन है और उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो उस पानी का पीएच क्या होगा? हाउ यू कैन बी कैलकुलेट इट? एनी आइडिया? सर एक वो जो फार्मूला है pH इक्वल्स टू log 1/H पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला नहीं, माइनस log H पॉजिटिव वाला, वो तो फॉर्मूला आपका है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये तो पीएच हो गया। यानी कि कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपका 0.2 नॉर्मल KOH हमने पानी में डाला, तो पानी में KOH डालने से हाइड्रो, क्योंकि आपने पानी में डाला और पानी में मैं अगर उसकी वॉल्यूम भी फिक्स कर दूं कि मैंने 100 ml वाटर में आपका 0.2 नॉर्मल KOH डाल दिया, ओके, हमने वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया कि 100 ml वाटर में आपने 0.2 नॉर्मल KOH डाल दिया, तो आपका पहले प्योर पानी था, उसका पीएच लगभग 7 के आसपास होगा, न्यूट्रल था, ठीक है, बट हमने 0.2 नॉर्मल KOH उसमें डाला, तो अब KOH के डिसॉल्व होते ही उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज हो गया, ओके। सो ये जो चेंज हुआ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? क्योंकि जब तक ये चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप वाटर का उस पानी उस सॉल्यूशन का पीएच नहीं निकाल सकते। इज इट क्लियर? सर फॉर्मूला होता होगा? हाँ बिल्कुल है। अब इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले आपको चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू C अल्फा करते हैं, ठीक है? यस सर, C अल्फा वाला।
अब सी अल्फा क्या है इसमें? सी हो गया कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? जिस कंपोनेंट को आपने वाटर में ऐड किया, और वो था आपका KOH, उसका कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया 0.2। ओके, अब अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज दैट एसिडिटी और बेसिसिटी। Yes. तो एसिडिटी और बेसिसिटी है, तो इसमें हमने KOH है, तो KOH है तो बेसिसिटी होगा, और इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी है 1। एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज गेट इनटू द आयनाइज्ड फॉर्म, कितना आयनाइजेशन हो रहा है उसका। तो यहाँ पे K और OH दो में स्प्लिट होगा, तो इसकी जो बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही आयनिक फॉर्म निकल के आ रहे हैं। ओके, तो 0.2 into 1 हो गया, ये हो गया। तो लेकिन इसमें हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं निकला, क्योंकि हमने क्या डाला था इसमें? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इट गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमने कंसंट्रेशन किसका निकाला? OH का। तो OH इक्वल टू 0.2 कंसंट्रेशन। अब हम इसमें हमारा pH नहीं निकलेगा, इसमें हमारा क्या निकलेगा? POH निकलेगा। ओके, and then we calculate the POH, and then after what we do, we can minus it from the pH equal to PW, या फिर हम इसको बोलते हैं 14 माइनस POH। तो जो भी हमारा POH आएगा, हम उसको 14 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा pH कैलकुलेशन आ जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द हाउ वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनी pH। इट इज अ वन टाइप दैट कि हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि हमने इतना अमाउंट हमने ऐड किया, एंड देन आफ्टर व्हाट इज द चेंज ऑफ pH, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। बट देयर इज अनदर मेनी मोड्स ऑफ हाउ द pH इज गेट कैलकुलेटेड if this they are the different, because biochemistry, you know, biochemistry में हम अलग-अलग तरह के सॉल्यूशंस को अलग-अलग तरीके से ऐड अप करते हैं। सो देन उस एडिशन के बाद कितना चेंज इन pH होगा, दैट व्हाट वी गेट कैलकुलेटेड विद द डिफरेंट वे। ओके, सो दिस इज व्हाट द थिंग्स, बट later on we have to see that some of the problem related to pH, and then we discuss it in detail. Okay, Okay, sir. now we come to the that pH scale. We see that that is another very important property, that whenever we see that the change in pH, then on the basis of the change in pH we see that any of the solution is acidic, basic, or the neutral, and this is only give the water gives the this very important information. Now these are the some of the very unusual properties we have to discuss in detail. So these are the some physiochemical properties of water, which can be summarized as follows. So these all are the properties which make the water solvent of life. ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि रियली वाटर को सॉल्वेंट ऑफ लाइफ बना रहा है। तो व्हाट आर दोज? दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि दैट व्हाट आर द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, high heat of vaporization, high heat of fusion, density and freezing properties, high cohesion, adhesion and surface tension of water, and water act as a reactant. So these all are the some physiochemical properties of water which we have to discuss in detail. Okay, so for the today I think this is sufficient. If you have more information, if you want to require any more information, then you have to took some practice books also. उसमें आपको कुछ practice books में भी आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। Okay, and if you have any queries regarding anything which we have discussed today, then you just ask me any questions. सर इसका सर पीडीएफ सर शेयर कब करेंगे सर? इसका पीडीएफ क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, तो मैं इसलिए इसका पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, बट इससे वाटर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल होगा, आई जस्ट शेयर इट ऑन योर गूगल क्लासरूम। ओके,
तो आप उसको भी ओके देख सर, सकते हो। ओके, थैंक यू सर। और अभी आगे Thank की you, क्लास sir. में, अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा जो अभी हमने बात किया है अनयूजुअल प्रॉपर्टीज पे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर आई थिंक वी हैव कंप्लीट विद द दिस होल टॉपिक वाटर, and then we have to switch to some new topic and then discuss in detail. Okay, any other queries, any new? No. Okay, so thank you all, see you in the next lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir. चले गए सर क्या? प्रेजेंट अटेंडेंस नहीं लगेगा? हाँ चले गए। नहीं दी है। क्यों? कोई पेपर के बारे में पूछ रही है, होती है कि होगा कि नहीं है, अटेंडेंस का फैक्टर पेपर भैया तो नहीं है। क्यों पेपर तो वो बोले ही है कि होगा। कहाँ बोले हैं? वो शुरू बोले हैं से कि उनकी जैसा होगा बातों से क्या प्रमोशन लग के रहा लिए, था तो ना, बोले हैं सर। उसमें अरे वो बोले नहीं है कि जैसे पेपर बोला कि यूनिवर्सिटी, हाँ वो क्या की बात बोल रहे थे वो ये नहीं बोले कि नहीं होगा। प्रमोट करने जैसा होगा वैसा देखा वो जाएगा। ये भी तो बोल रहे हैं कि बहुत बहुत मतलब, हाँ प्रमोशन के लिए बोल तो गए हैं। लेकिन बोल नहीं रहे तो थे नहीं कहा है promotion भी ना, होगी। अब ये तो नहीं कहा ना कि पेपर नहीं होगा, वो सुनो बस सुनो, कहते उनकी उनकी बातों से, सुनो उनकी सबकी बातों से पता चल रहा है कि 70% नहीं होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने, अगर ये देखो बात जो करी है वो ना होने की ज्यादा करी है। कब अब हमको करने तो की नहीं समझ पेपर में नहीं, आया। एक दो लाइन बोली वो तो ऐसे बोले थे प्रमोशन कि की हम बात कर रहे थे। पेपर का तुम नहीं समझ पाए अरेंजमेंट ना तुम, करेंगे। हैं? और क्या प्रमोशन की उन्होंने बात सिर्फ करी है, अगर ज्यादा देर करी। देखो अगर जहाँ 5 मिनट बात हम कर रहे थे, समझ गए, 3 मिनट 4 मिनट प्रमोशन की बात करी। करा देखो, अगर प्रमोशन ना करना हो तब तो क्योंकि तुम्हारी आवाज कट रही है आपसे। प्रमोशन पर वो तो कहते हम की बात अरेंजमेंट की है। करेंगे अभिषेक पेपर अपनी कराने का। कोविड की रिपोर्ट भेज दो तेरे को। तो पता नहीं है यूनिवर्सिटी जैसे करे। अभिषेक वही तो कंफर्म थोड़ी कि नहीं होगा, हो भी सकता है। कर दे देंगे, कहेंगे सर हम तो पॉजिटिव है, हाँ घर वाले बोले नहीं सर, चेकअप करा दे रहे हैं। हाँ कहते सर मैं पॉजिटिव निकल गया हूँ कोरोना, कैसे एग्जाम देंगे हम। हाँ बोलो। अब भगवान का नाम लो और कुछ नहीं कर सकते। क्या अभिषेक तुम्हारी बहुत याद कहेंगे कि आएगी। रिपोर्ट दिखा तो क्या रेस्ट इन कहेंगे? पीस। रिपोर्ट तो देखेंगे ना वो। हाँ रेस्ट इन पीस अभिषेक। अभिषेक रेस्ट इन पीस। हाँ काहे के लिए रेस्ट इन पीस? अभी कोविड हुआ है, बच्चों थोड़ी। अरे यार देख क्या लो सोच देख रहे लो हो, मर बचने जाए। देख लो अभी तो बचने भी नहीं चाहिए। देख लो। क्या 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 तुम क्या दिखा रहे हो जी सर? एक सेकेंड, सर बात करते तो कुछ नहीं बोलता है, इसके बाद सबसे ज्यादा यही बोलता है। देखो कह रहा है कि बेस्ट फ्रेंड हुआ, देखो कैसे बात कर रही है, देखो बोल रहा है, वही बोल रहा था। तो कह रहे हैं बेस्ट फ्रेंड है तभी तो बात कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत थोड़ी बोल दोगे। क्या अभिषेक? लड़ो लड़ो। हाँ अभिषेक ये आराम। अरे अरे अब किसको तुम तो ऑनलाइन कोरोना फैला रहे हो, जाओ यहाँ से। देखो तुम लोग फैला भी रहे, बचा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि जब सर पढ़ा रहे थे तभी एक बार आया खांसी खूब जोर से, सोचे कि सुना दे सर को, फिर सर कहते अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी रिपोर्ट तुम भेज, सर के पास पेपर कैंसिल हो जाएगी। क्या तो सर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है और हम पेपर देने आएंगे, फिर देखो। बोल देना मेरे साथ मंदसा और सबका भी है। अच्छा सबसे पहले इसी को बोलना, सौभाग्य क्या नाम है इसका, सौरभ, इसी को है। हाँ सौरभ। ये घोटी वीडियो कौन है? ये देखो वीडियो ऑन करके आ गया लोडू इंसान। पीड़ित और अब योगेंद्र पीड़ित लगा रहा है। अरे गजब, तुम तो पूरा बोल दिया, हम तो आधा ही बोले थे।
गाली दे रहा है, गाली दे तो दे। क्या? और इसके अलावा कर ही क्या सकता है? सब भाग रहे हैं, चलो निकलो। आपको भागो। क्लास नहीं है किसी की? अब क्या? अरे आपको एचओडी किसी पढ़ाए क्लास यार नहीं है? 1 महीना बाद। तुमको लग रहा है 1 महीने बाद पढ़ाए हैं? सर वैसे मोटे हो गए मुझे लग रहा है। सब तो भाई गए, तू बच्चे के अंदर बच। सर मोटे हो गए हैं, नोटिस किया कि नहीं किसी ने? हाँ तुम यही नोटिस हाँ। करो, वाटर पे कंसंट्रेट नहीं करते तुम, सर के मोटापे पे कंसंट्रेट कर रहे अबे थे। हम सो गए थे। सर की लेक्चर करते करते बीच में सो गए थे, फिर सो के उठे देखें ये क्या आ गया। अच्छा तो क्वेश्चन पूछ लिए कि मतलब हाउ टू कैलकुलेट द पीएच। मंतशा बहुत पढ़ रही है लग रहा है। कौन पढ़ रहा है? किसने कहा? हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रही हो, उतना तो कोई लेकिन दे नहीं टाइम पा का रहा है। पता नहीं चला इनकी क्लास में आज। हाँ वो तो है। अरे हाँ इनका ऐसा कुछ नहीं। अच्छा कौन? पढ़ा। एक सेकंड, किस किस क्वेश्चन का आंसर दिए जरा ये बताओ तो। अब ये तो अभिषेक से ही पूछा। अभिषेक को कोरोना है, तुम्हें पता है कि वो बचेगा नहीं। इतना नॉलेज कहाँ किसी के पास होता है। बिल्कुल, तुम भी नहीं बचोगे, आओ तुम। हमको नहीं है वैसे कोरोना, हम दूर ही रहते हैं। हो, लेकिन हो जाए, तुमको भी हो जाए। हम बोल रहे हैं ना, हमको नॉलेज, हमको पता है ना, तुमको भी होगा। हमको इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम तुम्हारे नजदीक नहीं थे। अभिषेक तुम्हारे नजदीक ही रहता था। तो तुमको हम कोरोना वायरस दिख रहे हैं क्या? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, हम समझ गए। तुम्हारे अंदर जो यार तुम्हारे अंदर जो जुनूनी कीड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा काट रहा है, समझ रहे हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पढ़ो लिखो तुम लोग। अब पेपर नहीं होगा फिर भी वैसे भी मान लो आगे आगे जरूरत पड़ेगी। रुको रुको, सौरभ, सौरभ, सुनो सुनो सुनो, बकवास ना करो, पढ़ो लिखो, IAS बनो और निकलो यहाँ से। तुमसे बोल रहा है। हम पढ़ रहे हैं। देखो अभिषेक को पता है हम कितना पढ़ रहे हैं। अभिषेक बताओ कितना पढ़ रहे हैं? अरे पेपर के लिए ना पढ़ो ना सिर्फ। देखो जिसको पढ़ना हो तब लोग मतलब आगे देखो बीएससी के बाद एमएससी में जाने के लिए इंट्रेंस निकालने ही पड़ेंगे। तो ये सब टॉपिक ज्यादा रहते हैं, जो ये माइक्रोबायोलॉजी और ये सब। वही कह रहे, वही पढ़ो, IAS बनो, MSc निकालो। और सौरभ की तरह नहीं, वही कह रहे। हाँ वही निकालो, सौरभ की तरफ बगलोली थोड़ी करना है यहाँ बैठ के। हाँ हाँ, गेट निकालो, गेट भी निकालो। अरे गेट कौन निकालता है? जैम वो निकालो ना, DBT बायोटेक्नोलॉजी या फिर JNU सीव। उससे बात कर लो, हम जा रहे हैं। अब इससे पता चलता है ना, सौरभ सबसे ज्यादा पढ़ रहा है, सबसे ज्यादा सौरभ पढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो घर पे सोते रहते हैं। कल गए थे शादी में, एक गांव में शादी था, फिर रात में आए, फिर इस समय नींद आ रही थी। सर की क्लास में नींद आ गई। अब देखो ये शादी में जा रहा है, इसको पक्का कोरोना होगा। कोरोना है, हो नहीं रहा। हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलते हैं, ठीक है। वो दिखता है, 1 फीट की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहलाती। तुम्हें कैसे पता? हम तो इतना नजदीक किसी क्लास में भी नहीं रहते थे। वो दिखता है, इतने नजदीक हुए हो तभी तो सीनियर बात करना बंद कर दिए हैं। इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा दी हो कि देखो सब इतने दूर दूर भाग गए हैं। ऐसी बात नहीं है। देखो बात तो हम करना, मैं खुद नहीं बात करता किसी से। अगर बात करो सब अरे अरे इतना झूठ ना बोल। तुम बात नहीं कर, तुम्हारे बात के चक्कर में सबकी बातें बंद हो गई। हम दिखा दें मत दिखाओ, तुम मत दिखाओ। भाई तो सुनो, तुम वो दिखाने में तो एक्सपर्ट हो। दिखा दे, ये दिखा दे, वो दिखा दे, सब दिखा दो, तभी तो दिखा दिए हो। नहीं चैट देखो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता ना, इंटरेक्ट करता नहीं। सिर्फ 2-3 लोग से करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि तुम इतना शांत बुलाते हो। अच्छा चलो ठीक है, शांत। वही तो, तुम जिससे इंटरेक्ट कर लेते हो फिर इंटरेक्ट कर नहीं पाते हो दोबारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं कि चलो ठीक है एक पे ही फोकस रहते हैं। एक पे फोकस? कौन एक? किस एक की बात कर रहे हो तुम? अरे वही। कौन वही? हम तो तुमको जानते ही नहीं थे। तुमको देखो, हम तुमको तब से जाने ना, तुम क्लास में हो जब से वो फ्रेशर में, जब नाम से प्रसिद्ध हुई थी।
अच्छा वो कैसे हुए थे प्रसिद्ध, तो हम भी बताओ। अरे भाई स्टेज पे जो हुआ था। वही तुमसे पूछ रहे हैं हम। चलो रहने दो। फराज से बात अरे होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है, बातें करो और वार्तालाप करती रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है वो तुम बताओगे। नहीं बता रहा। देखो अच्छी बात है। फराज अभिषेक मेरी क्लास में 2 ही मेरे फ्रेंड है, फराज और अभिषेक। फ्रेंड नहीं है? क्या हुआ? नहीं कुछ और। मतलब दिमाग ना पेलो यहाँ पे, ठीक है। फराज और अभिषेक 2 ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है क्लास में, और कोई नहीं है। पहले फराज से फ्रेंडशिप हुई थी, फिर अभिषेक से। तो अभिषेक मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड फराज मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। सिर्फ 2 ही मेरे क्लास फ्रेंड है, और श्रेया के अलावा, श्रेया है एक, और कोई मेरे क्लास में कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। और इंटरेक्ट करने की कोशिश ही नहीं तुमने किया तो कहाँ से बनेंगे? क्या इंटरेक्ट किया है? देखो हमारे फ्रेंड नहीं बनते, हम सबको फ्रेंड नहीं बनाते, कुछ ही बनते हैं। सबसे बात करते हैं, बस सब मेरे फ्रेंड नहीं होते। बस बस यही चीज सबके साथ होती है ना, ऐसा थोड़ी ना होता सबके साथ नहीं होती। हम 2 क्लास में बहुत लोगों के साथ सबसे बात करते हैं। बस उनको जिनको जानते नहीं उनसे नहीं बात करते, जो नहीं आते हैं अलग बात है, लेकिन जिनको जानते हैं उन सबसे बात करते हैं। बट सब मेरे फ्रेंड नहीं है, क्लासमेट्स हैं और क्या। वो तो सबके साथ होता है। जैसे तुम हो, तुमसे तैयार है, तुम मेरे फ्रेंड हो नहीं, तब। अब ये तो हम थोड़ी ना हम देखो मेरा जो मुझे फ्रेंड मानता है वो मेरा फ्रेंड है, जो नहीं मानता वो फ्रेंड नहीं है मेरा। सिंपल सा फंडा है, मतलब जैसा लोग ट्रीट करते हैं वैसा मैं उनके साथ ट्रीट करता हूँ। वही मतलब ना, मेरा तुम जिससे मेरा, ट्रीट मेरा करोगे, तुम जैसे जैसे देखो तुम जिससे ट्रीट करोगे हम तुमको वैसे ही दोबारा ट्रीट करेंगे। तो बस यही बात है, जो हमको अच्छे से नहीं ट्रीट करता है वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे बहुत ज्यादा हम क्लोज हैं, और वो बहुत है जो भी है। अच्छी बात है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मतलब जो अच्छा ये कॉल मेरा मेरा रिकॉर्ड पे है, तुम्हें दिख रही है कॉल रिकॉर्ड पे, ऊपर देखो। तुम कट कट करो ना, हम तुम तो बोल रहे हैं। भाग तुम भी यहाँ से। फालतू की बातें कर रही हो। हाँ चलो जाओ बाय। निकलो। बाय बाय।